Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We have completed our chapter that is nutrition in plants. Now we will discuss our topic, a new chapter that is nutrition in animals and human beings. Now, first, what is a nutrition that we all know? The process of taking nutrients in your body and gets digested, which gives your body the growth and the development, is known as nutrition. Now, nutrition in animals, like we have animals include human beings, butterflies, small insects, and these frogs, means every kind of organism except green plants comes under animals. Now all organisms at all need energy to maintain themselves. ये हम सबने पढ़ा था. Why do we need food? That we need food to get energy and to do the proper functioning. Now we all know that plant makes food, that is by the process of photosynthesis. Now this plant is eaten by deer and then deer is eaten by tiger. So this is how the other organism dependent on plant directly or indirectly. See, this tiger is eating the deer. So that means tiger is dependent on deer. But on which thing deer depends? Deer depends on plants. So tiger indirectly depends on plants, because if deer does not eat plants, so tiger cannot fulfill its need. Okay. So they derive this energy from the food they eat. जो भी energy उन्हें मिल रही है वो food से मिल रही है. Different animals eat different foods. अलग अलग animals अलग अलग food खाते हैं. ये हम सब ने पहले देखा है. That is like in nutrition in plants we have studied about parasitic nutrition. Okay. And we have studied about saprophytic nutrition. वहाँ पे plants के बारे में था, but यहाँ पे animals के बारे में. तो ये चीज़ हम देख चुके कि हर एक animal को अलग अलग food चाहिए होता है. Like कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है एंड आपका हर्बीवोरस है. सबको अलग अलग फूड चाहिए, बट सब फूड्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली केमिकल चेंजेस के अंदर जा रहे हैं. व्हाट इज द केमिकल चेंज? दैट मीन्स व्हेनेवर द रॉ रिएक्टेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट. Now see, girl is eating an apple, lion is eating sheep, cow is eating grass. So हर एक अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खा रहा है एंड सबको वहाँ से एनर्जी मिल रही है. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड खाता है तो वहाँ पर उसकी बॉडी एक फंक्शन परफॉर्म करती है. उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. इन दिस प्रोसेस मेनी ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी वर्क टुगेदर. बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे वर्क करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ दिस इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ दिस इज योर salivary gland. Salivary gland is located in your cheeks. Okay, and this is your mouth and this is your nose. Now next, this pipe that is coming from your mouth, orange color pipe, is known as esophagus, or you can say it as food pipe. Then this red color structure is known as your liver. फंक्शनिंग हम सबकी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट हम सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. नाउ दिस ऑरेंज कलर पाइप इज कनेक्टेड टू अ U-shaped structure. It is known as a stomach. Now then you can see this green color structure. This is your gallbladder. Now this yellow color structure which is hidden between the stomach and the intestine, it is known as pancreas. It is a leaf-like structure. Now this light pink color is your small intestine. Then brown color structure is your large intestine, and this is your appendix. And then you have anus over here, which helps in removal of food material, waste material from the body. Now next is modes of procuring food. Now different organisms use different methods to procure food. हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग मेथड है फूड प्रोक्योर करने के लिए. सो ईच एनिमल हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑन देयर बॉडी टू प्रोक्योर food. Now what are they? Animals such as cow, horse, etc. take in food directly into their mouth. Now कुछ like हम हैं, हम क्या करते हैं? डायरेक्टली रोटी टीयर करें, टीयर करने पर डायरेक्टली माउथ में डालें. सो हम क्या करें? डायरेक्टली फूड माउथ में लेके डालें. सेम एज योर काउ एंड
horse. सी, काउ ने डायरेक्टली ग्रास को प्लग किया, प्लग करने के बाद डायरेक्टली माउथ में लेगी, सो इट इज अ डायरेक्टली टेकिंग फूड इनटू द माउथ. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ. ये आप सबको पता है. सी, द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल, शी इज यूजिंग हर हैंड टू पुट द एप्पल बाइट इनटू हर माउथ. Amoeba uses its feet called pseudopodia to engulf food particles. Now, amoeba is a kind of organism which does not have proper legs, proper hands to get the food digested in the body. So, what it do is it has a pseudopodia. What is a pseudopodia? Pseudopodia is false leg. Pseudo is false, podia is the legs. So, the mode of nutrition is by the help of pseudopodia. So pseudopodia is false leg. Now what it do is, see, this is your amoeba, this green color structure is your amoeba. It is changing its shape, वो अपनी shape change कर रहा है as a kind of legs so that it can reach to the food particle. This orange color structure is your food particle. So this orange color structure के food particle के पास हो जाने के लिए क्या कर रहा है, अपनी shape change करें. So this changing in shape is known as your pseudopodia. It is known as your pseudopodia, and you can see that it has engulfed the food. उसने food अपने अंदर पूरा ले लिया. So it is by the process of pseudopodia. Now a paramecium has next organism is a paramecium. इनके पास कोई proper फीट नहीं होता, प्रॉपर लेग्स नहीं होते, प्रॉपर हैंड्स नहीं होते, तो उनके पास एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. लाइक हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, सेम वे में इनकी बॉडी पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया. क्या बोलते हैं, सीलिया. अब ये सीलिया क्या करते हैं कि ये आपके फूड पार्टिकल को पुश करते हैं एंड फ्रॉम दैट इट विल मूव इनसाइड द बॉडी. सी, पैरामीशियम इज लाइक स्लीपर लाइक, चप्पल की शेप में दिखता है ये आपको. This is a paramecium. This small hair-like structures are your cilia. Now, this is your oral groove from which the food is going inside. From which the food is going inside, and then it convert into a vacuole, that is food vacuole, which helps it to give nutrition. Now, paramecium swooping its food with the help of its brush-like structure. These hair-like structures जो आपको बाहर दिख रहे हैं पर्पल कलर के बाहर, इट इज योर सीलिया. फ्रॉग अपनी टंग यूज करता है अपने प्रे को कैच करने के लिए, प्रे जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, जिसको आप हंट कर रहे हैं. सी, टंग बाहर आई, मॉस्किटो को अंदर ले लिया. ओके. नेक्स्ट, बटरफ्लाई क्या करती है, अपनी ट्यूब यूज करती है ताकि वो फ्लावर से नेक्टर सक कर ले. सी, बटरफ्लाई क्या कर रही है, नेक्टर सक कर रही है फ्लावर से. नाउ हाइड्रा एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो अपने टेंटिकल्स यूज करता है ताकि वो अपने प्रे को किल कर सके और अपनी बॉडी के अंदर उसे ले जाए. सी, दिस इज योर हाइड्रा ग्रीन कलर एंड यू कैन सी अ थिन लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फ्लोटिंग इन द एयर विद द हाइड्रा. इट इज नोन एज योर टेंटिकल्स. ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं फ्लोट कर रहे हैं एयर के अंदर, मूव कर रहे हैं बराबर, इट इज़ योर टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रिया. एंड दिस इज योर इंसेक्ट जो अंदर जा रहे हैं. नाउ सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फुट. ये भी इनके सूडोपोडिया है, फॉल्स लेग हो गया. सो सूडोपोडिया इज अ टेम्परेरी आउटग्रोथ यूज्ड बाय सम ऑर्गेनिज्म एज एन ऑर्गन ऑफ फीडिंग और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. लाइक अमीबा में क्या करते हैं, वो मूव कर रहे थे शेप चेंज कर करके. सो दिस इज हेल्प इन मूवमेंट एंड एज वेल एज इन फीडिंग देयर ऑर्गेनिज्म. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अ स्पाइडर वीव्स अ वेब, जाला बनाता है मकड़ी का. सो अल्टीमेटली क्या करे ताकि उसमें उसका कैच स्टिक हो जाए एंड वो उसे खा सके. सी, मॉस्किटो स्टिक हो गया वहाँ पे एंड देन स्पाइडर उसे डाइजेस्ट कर लेगा. I hope this is clear to you. Now we will have an activity to find out and record the type of food and mode of fooding for the following animals. आपको वो कौन सा फूड खाते हैं, क्या मोड है उनका और कौन से एनिमल को लेते हैं. Now
Serial number, animal, food, mode of taking food, and then figure. Now first animal is your housefly. Housefly का food क्या है? Spoiled food. खाने के ऊपर बैठते हैं जो खाना खराब हो चुका होता है, that is your spoiled food. Now कैसे लेगी? स्वेलो करेगी, अंदर लेके जाएगी डायरेक्टली. स्वेलो मीन्स आप डायरेक्टली अंदर लेके जा रहे हैं बॉडी के. So this is your figure. Now next organism is a butterfly. आप सबको पता है बटरफ्लाई नेक्टर सक करती है फ्रॉम फ्लावर्स. सो सकिंग इसका मोड ऑफ टेकिंग फूड हो गया. नेक्स्ट इज योर हमिंग बर्ड. दिस इज योर हमिंग बर्ड विच ऑल्सो सक नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर. सी uses its beak to suck nectar from the flower. नेक्स्ट इज मॉस्किटो. मॉस्किटो क्या करते हैं? आपकी बॉडी से ब्लड सक करता है विद दिस रेड कलर निप. ये जो आपकी स्मॉल रेड कलर की निप दिख रही है ना, बिल्कुल नीडल लाइक, इसकी हेल्प से वो ब्लड सक करता है. ह्यूमन हैंड है, मॉस्किटो सेट करेगा, बाइट करेगा एंड देन ब्लड सक करेगा. सी रेड कलर की निडल लाइक आपकी बॉडी के अंदर जा रही है एंड वो ब्लड सक कर रहा है. नेक्स्ट इज लाइस. ये सब आपको पता है कि ये जू होती है जो घर हेड्स में मिलती हैं आपके. ब्लड सक करते हैं. लाइस लिव्स अमंग ह्यूमन हेयर. ह्यूमन हेयर में रहती है एंड फीड्स ऑन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ब्लड ड्रॉन फ्रॉम द स्कैल्प. स्कैल्प इज योर हेड. ओके, क्या करती है? वो सक करती है. सी नेक्स्ट इज योर स्नेक. स्नेक क्या करता है? स्वेलो करता है. स्मॉल स्मॉल एनिमल्स को स्वेलो करेगा. स्मॉल एनिमल यहाँ पे फ्रॉग लिया है हमने. स्वेलो का मतलब डायरेक्टली बॉडी के अंदर लेके जा रहा है माउथ के थ्रू. नेक्स्ट इज योर ईगल. ईगल क्या करेगा? बीक की हेल्प से, बीक चोंच, दिस इज योर बीक. बीक की हेल्प से क्या करेगा? अपने एनिमल को हंट करके देन उसके फ्लैश को टीयर करेगा. फिर डेड एनिमल आपकी शीप है, यहाँ पे अपनी बीक की हेल्प उसको ईट करेगा. सो दिस इज एन कार्निवोर. ओके, दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग यू नीड टू राइट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. नाउ वी विल डू वन मोर थिंग, दैट इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. What do you mean by process of nutrition? Now various aspects of obtaining food. Nutrition क्या था? जो आपको फूड दे एंड आप उसको अपनी बॉडी में यूज कर सके फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन. Now it involves 5 steps, that is ingestion, digestion, absorption and assimilation and egestion. Now जब आप फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, लाइक आपने बाइट तोड़ी, बाइट तोड़ने के बाद चपाती के अब अपने माउथ में रख रहे हैं, सो दिस इज नोन एज इंजेशन. द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली इकट्ठे इज कॉल्ड एज इंजेशन. सी बॉय क्या कर रहा है? बाइट अपने माउथ के अंदर लेके जा रहा है, सो इट इज नोन एज इंजेशन की वो बाइट को अपने माउथ में लेके जा रहा है. टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड योर माउथ इज ओनली इंजेशन. इन ह्यूमन बींग्स इंजेशन कहाँ से होता है? माउथ की हेल्प से होता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज योर डाइजेशन. नाउ आपने फूड माउथ के अंदर ले लिया, अब माउथ के बाद उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट सम एनर्जी. सो जो आपने फूड खाया आप उसे ब्रेक करेंगे सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में. सिंपलर, इतना बड़ा सॉलिड पार्टिकल आपकी बॉडी में यूज़ नहीं होगा तो आप उसे सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे सो दैट आपकी बॉडी से यूज़ कर सके. तो उसे क्या 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 कहते हैं हम? डाइजेशन. द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. The digestion that occurs inside the cell is called the intracellular digestion. आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, so that's why it is known as intracellular digestion.
और जो डाइजेशन आपकी बॉडी के बाहर होगा, मेन सैप्रोफिटिक में क्या आता है, सबको सॉल्युबल फॉर्म में आपको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में मिल रहा था, दैट इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन माउथ. माउथ में स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना, बट कंप्लीट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. सी, आपने फूड पार्टिकल लिया, आपके माउथ में गया, माउथ के बाद वापस स्टमक से पास होकर, दिस येलो कलर इज योर स्टमक, दिस इज योर ईसोफेगस. स्टमक से पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक में आया, स्टमक के बाद कहाँ जा रहा है, फिर स्टमक के बाद वो मूव कर रहा है और कहाँ जा रहा है धीरे धीरे, इंटेस्टाइन में. दैट इज योर ग्रीन कलर स्ट्रक्चर. दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा. एंड दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ नेक्स्ट इज इंजेशन. क्या था, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ. अब माउथ के अंदर फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दिस इज योर डाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. आपने फूड खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, पर उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी होने चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिल सके. सो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन में हमेशा आपका ब्लड हेल्प करता है. Now the process by which soluble molecules present in the digested food passes into the blood. जो भी digested food है soluble molecules के, वो जब blood में pass on होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, absorption बोलते हैं. In human beings, absorption takes place in small intestine. See, this is your small intestine. This one, this light pink color is your small intestine. This is your small intestine, a highly coiled structure. Now after absorption, what it does is assimilation. Assimilation में क्या होता है, जो भी फूड आपने खाया, एब्जॉर्ब हुआ है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एंड ग्रोथ के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन. नाउ नेक्स्ट इज इजेशन. इजेशन क्या था, द प्रोसेस बाय विच. अब आपने फूड खा लिया, फूड खाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं. सो इट इज़ नोन एज इजेशन. कि आप जब अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इजेशन. द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. सी, फूड माउथ से आया, फिर फूड पाइप ईसोफेगस में गया, देन अब वो स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद अब फूड कहाँ जा रहा है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में. नो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जा रहा है, आपका एनस एंड एनस के थ्रू बाहर निकल गया. So this is known as your digestion. I hope this is clear to you. That's all for today. And please try to copy all these notes because this chapter is very much important. And please copy all this. That's all for today. Thank you.